Hello and welcome to our program. There are various views on whether competition at a personal level is good for us or not. But economists by and large agree that healthy competition is critical for economic development. Our guest today is someone who not only understands the importance of competition, but also how do we protect it, promote it and sustain it. Please welcome the first chairman of the Competition Commission of India, Sri Dhanendra Kumar. So welcome to our show. Thank you. Why do we need competition in the market? Competition brings out the best from the human beings. In fact, competition is the law of nature if you look at any situation. Indian mind and Indian brains are considered to be the best in the world. It has been proved in a number of situations. It has been proved in Silicon Valley. It has been proved by the professionals in the United States, in Europe and elsewhere. And in the face of competition, in the teeth of competition, Indians deliver the best. And that's why we are of the firm conviction that competition, promoting and sustaining competition, will bring the best out of the Indians in the economy. But for the consumers, also competition is the best, because competition gives them greater choices, greater availability of goods and services, also at cheaper prices, because the competition spurs innovation. And as a result of greater competition, more number of players in the market, better products come in, there is a greater investment in R&D, innovations, and as a result you have seen, for example, in telecom, what has happened in the last decade or so. Right. You have seen what has happened in transport, in civil aviation, in consumer electronics, variety of other things. The services have improved, and we hope that as greater competition comes into being, we would witness ultimately the consumer is the king. Very true. He would have much greater choice. True. Also, so now that we're saying that we must conserve natural resources, it some way optimizes the use of human capital and other resources. Absolutely, you said it. Competition does mean best or optimum efficiency in allocation of resources, both physical and human resources. And ultimately, it leads people to invest in those areas where productivity is the highest. So competition क्यों अच्छा है ये तो समझ में आ गया. अब ये कंपटीशन कमीशन क्या करती है? आपने बड़ा सही मौजू सवाल पूछा, क्योंकि सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैंने जब यहाँ चार्ज लिया 2 साल पहले जी. फरवरी 2009 में, मैं उससे पहले वर्ल्ड बैंक में था, वहां से लौटा था, यहाँ नियुक्ति हुई. तब कुछ लोगों ने मुझे कहा बधाई हो, आपको कोई नया चार्ज मिला है. और बाय द वे कंपटीशन कमीशन में क्या होता है, आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराते हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है, ये MRTP के बदले बनाई गई है. MRTP नवंबर 2009 में समाप्त हो गया. MRTP का अपने वक्त में बड़ा अहम काम था, तो वो मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह को रोकने के लिए था. लेकिन ये तब की बात है जबकि इकोनॉमी कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी के दौर से गुजर रही थी. तो 1960 से लेके ऑनवर्ड्स 1990s तक ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी. 1991 में जबकि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रादुर्भाव किया, और उसके वजह से उस वक्त सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ग्रेजुअली खोल दिए गए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रतिस्पर्धा के लिए. और उसकी वजह से जो सरकार का काम था इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को रेगुलेट करने का, लाइसेंस, परमिट वगैरह से, तो वो सब बदल के अब प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट इनिशिएटिव के पास चला गया. तो कंपटीशन का एक मुद्दा ये था कि किस तरीके से कंपटीशन के जरिए मार्केट में रेगुलेशन खुद ब खुद होता रहे. Competition would regulate the market rather than the government regulates the market. तो उसके नतीजतन ये होगा कि अब कंज्यूमर को चॉइस होनी चाहिए, और कंपटीशन से ये हो कि जिन चीजों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, एफिशिएंसी हो,
उनमें अपने आप खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट जाए। एमआरटीपी में ये होता था कि आपकी जो ग्रोथ है, आप मोनोपोलीज ना हो जाएं, आप डोमिनेंट ना हो जाएं, इसके ऊपर एक कैप सी थी, इसके ऊपर पाबंदी सी थी। तो वो उसका फिलॉसफी दूसरी थी जी। कंपटीशन कमीशन के ये जो नया कंपटीशन एक्ट बना है, इसके अंदर ये है कि आप कितने ही बड़े होते हैं, बड़ेपन पे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट growth is a natural corollary, natural phenomena of growing economy, and you can grow as big as your talent or this thing allows, but you should not abuse your bigness, abuse of dominance. तो इसके अंदर वो सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है जो पहले कुछ हो सकती थी, लेकिन आप नए लोगों को आने से ना रोकें। आपको पता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बैठे हुए तो फिर कोई और आ रहा होता है, खिड़की से भी कूद के आ रहा होता है, तो उसको रोकते हैं कि भाई अंदर बहुत भीड़ है, मत आओ। अगर साथ में फालतू जगह भी होती है, थोड़े फैल के बैठ जाते हैं और दरवाजा बंद कर। नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट के अंदर आप किसी को आने से रोकें, तो ये एक बैरियर क्रिएट करने वाली बात है, कंपटीशन रोकने वाली बात है। जितने प्लेयर होंगे अच्छा है, आने दीजिए। लेकिन कंपटीशन कमीशन और एमआरटीपी में बहुत सारे और भी फर्क हैं। ये तो एक फिलॉसफी की बात मैंने बताई। मिसाल के तौर पे कंपटीशन कमीशन में, ये कंपटीशन एक्ट बाय द वे 2002 में पारित हुआ था, 13 जनवरी 2003 को चालू हो गया था। किसी वजह से ये उस वक्त शुरू में पूरी तरीके से नहीं चल पाया, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ एक मेंबर थे, उन्होंने उस वक्त बड़ा अच्छा काम भी किया। फरवरी 2009 के बाद में पूरा कमीशन बन के आ गया धीरे धीरे, तब इनकी पावर्स भी नोटिफाई हुई। तो इनमें जो मुख्य और भी फर्क बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर एमआरटीपी के अंदर सरकार के डिपार्टमेंट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो कवर नहीं होते थे। ये कंपटीशन कमीशन के अंदर सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ये दोनों एट पार है। सरकारी विभागों में सिर्फ जैसे एटॉमिक एनर्जी नहीं होगा, करेंसी नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, डिफेंस नहीं होगा, जो सॉवरेन फंक्शंस हैं। लेकिन बाकी तकरीबन सारे फंक्शंस इकोनॉमिक फंक्शंस हैं, इसके पर्व्यू में आते हैं, इसके पर्व्यू में आ जाते हैं। तो अभी भी हमारे पास जैसे 150 के करीब केसेस आए हुए हैं, तो उनके अंदर कई केसेस ऐसे हैं जो सरकारी विभागों के खिलाफ हैं, जिसमें कि उनको लगा कि उनसे प्रतिस्पर्धा रुक रही है। और ये भी मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जब एक प्लान्ड इकोनॉमी से माइग्रेशन होता है ओपन इकोनॉमी में, तो कुदरती तौर पर ये एक माइंडसेट चेंज करने वाली बात है। तब बहुत सारे, अब बात मुझे इस पे ख्याल आ गई, ट्रेड एसोसिएशंस को लीजिए। अब नॉर्मली ट्रेड एसोसिएशंस, बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस को अभी आदत होती है पहले कि भाई आप साथ बैठते हैं तो तय करते हैं, बातें डिस्कस करते हैं कि भाई ट्रेड की क्या हालत है, कितनी उत्पादन कितना हो गया, क्या कीमत चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की क्या हालत है। लेकिन कंपटीशन एक्ट में इसकी बड़ी जबरदस्त मुमानियत है। आप एसोसिएशन में बैठ के या ऐसी गैदरिंग में बैठ के इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते जिनसे प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में कोई रुकावट पड़े। जितने प्लेयर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते जिनसे कि वो कोई कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, या जिनसे कि कंज्यूमर के हित में जो कंपटीशन चीज लाता वो ना हो पाए। मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर आइटम को बनाने वाले 5 लोग हैं, अगर वो तय कर ले कि भाई ये चीज 20 रुपए की बन रही है, और हमको ऐसे कर लेते, तय कर लेते हैं कि 25 रुपए की बेचना शुरू कर देते हैं कल से इसको, एक गुट हो गए सारे, एक गुट हो गए सारे। तो अगर ये प्राइस फिक्सेशन उन्होंने किया आपस में मिलके इस प्रकार से, तो ये एक बड़ा सीरियस ऑफेंस है कंपटीशन कमीशन के लिए, बड़ा पर्निशियस ऑफेंस है। सेक्शन 3 की जद में आता है ये हमारे यहाँ, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, प्राइस फिक्सेशन, और इस प्रकार के क्या सभी जितने ऑफेंसेस हैं, कई किस्म के और भी हैं, उसके लिए बड़ी हैवी पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये प्रूफ हो जाए कि किसी ने प्राइस फिक्सेशन इस प्रकार किया है, कंज्यूमर्स के हितों के खिलाफ उसमें कोई कुठाराघात किया है, मार्केट को रिक करने की कोशिश की है, तो उसमें उसको 3 times द एनुअल प्रॉफिट तक जुर्माना किया जा सकता है, 10% ऑफ द टर्नओवर
तक जुर्माना किया जा सकता है, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। ये एक तीसरा डिफरेंस है एमआरटीपी और कंपटीशन कमीशन में। एमआरटीपी को ये सब पावर नहीं थी फाइन्स और पेनल्टीज की, उनको सिर्फ सीज एंड डिजिस्ट की पावर्स थी। कंपटीशन कमीशन को ये सब पावर्स हैं। तो इन सब का उपयोग कंज्यूमर के हित में किया जाता है, इन सब का उपयोग मार्केट में फेयर कंपटीशन की बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट सेक्शन 18 जो हमारे एक्ट का है जी, उसके अंदर कंपटीशन कमीशन की एक ड्यूटी आयद की हुई है। वर्ड्स यूज्ड आर इट शैल बी द ड्यूटी of the competition commission mandatory to ensure that this is done and competition is safeguarded and competition is nurtured and promoted proactively। तो इसलिए हम लोग बाहर जाके भी बताते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, एसोसिएशंस को भी बताते हैं कि क्या चीज हो सकती है क्या नहीं। ये एडवोकेसी में आता है, एडवोकेसी में जो आता है, एमआरटीपी में नहीं था। Okay। और आपने चूंकि पूछा था किस प्रकार के मसले आ सकते हैं, तो प्राइस फिक्सेशन तो एक हुआ। बिड रिगिंग की बात आप ले लीजिए। अगर सरकारी विभाग या कोई भी सरकार या कुछ भी मान लीजिए कुछ खरीदना चाहें और फिर सब लोग मिलके ये तय करें कि भाई ये ऐसे करते हैं कि सरकार को क्या पता लगेगा और ये चीज हम बजाय 30 रुपए की बेचने के 30 रुपए की सरकार को कोट करें, हम 40 रुपए की कोट कर देते हैं। सब लोग मिलके तय कर दिया कि 40 की करेंगे, या अच्छा इस दफा तुम कर लो 40 रुपए में, तो बाकी सब 42, 44, 45 कर देंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके, ताकि उसको 40 में मिल जाए और अगली दफा दूसरे को मिल जाए। दिस नोन एज बिड रोटेशन या बिड सेपरेशन या बिड स्प्लिटिंग, जो आपस में मिलके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे इस प्रकार की चीजें करते हैं, जिससे कि सरकार का जो पब्लिक एक्सचेकर है, सरकार का पैसा, उससे निकलता है। इनफैक्ट इन मेनी कंट्रीज यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस बिकॉज दे से इट टेंटामाउंट्स टू रॉबिंग द पब्लिक एक्सचेकर। हमारे यहाँ इसलिए बड़ी हैवी पेनल्टीज रखी हुई है इस प्रकार। ये हो सकता है, या आपने ऑफेंसेस की बात की तो एक में और जिक्र के तौर पे आपको बता दूं, ये हो सकता है कि जो बहुत डोमिनेंट अंडरटेकिंग है, ये अगर इस प्रकार का कुछ करे, प्रीडेटरी प्राइसिंग एक टर्म है, जैसे प्रीडेटरी प्राइसिंग इस किस्म की बात है कि सपोज यू आर ए वेरी बिग कंपनी विद डीप पॉकेट्स एंड यू कैन सफर लॉसेस फॉर सम टाइम। आप एक चीज बनाती हैं, 20 रुपए की बनाती हैं, आपने उसको 5 रुपए की बेचना शुरू कर दिया मार्केट में, थोड़ा घाटा खा के, ताकि जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो कब तक उसको लॉस को सफर करने में भाग जाएंगे धीरे धीरे। जब वो सब भाग गए और आप रह गए अकेले, तो आपने 20 की जगह 40 की बेचना शुरू कर दिया। यू रिकूप योर लॉसेस, सो यू किल द कंपटीशन, वर्चुअली। बहुत सारी मार्केट की डिस्टॉर्शनरी प्रैक्टिसेस हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स दैट वी कीप इन माइंड। सर, प्रश्न एक जहन में आता है कि इन सब चीजों का प्रूफ कहाँ से मिले? क्या क्या चीजें किसी को जो कोई कंप्लेंट दर्ज करते हैं, क्या क्या इकट्ठा करना पड़ता है, इस पे बात करेंगे और बहुत कुछ आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। एक नोट ने कहा था, छुपाया कुछ नहीं मैंने, लिखा है सब लकीरों में। जरा सा पास तो बैठो, तुम्हें पूरी तरह देखूं। पहिए हैं न पंख।